عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستوں اور سامعین کرام، آج کا موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے، قرآن مجید کے حفظ کے متعلق ہے۔ جو حضرات قرآن مجید حفظ کرنا چاہتے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں یا قرآن سے جن کا شغف ہے، قرآن مجید جو تلاوت کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے جن کا تعلق ہے، ان کے لیے یہ بڑا مفید یہ بیان ہوگا۔ آپ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن خصوصاً ان طلباء کے لیے جو قرآن مجید حفظ کرنا چاہتے ہیں، حفظ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقین ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا تم اس کو یاد نہیں کرتے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا تم اس کو یاد نہیں کرتے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان کر دیا پڑھنے کے لیے، حالانکہ قرآن مجید فی نفسی بہت بھاری کلام ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم نے آپ کو بھاری کلام آپ پر نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول کو مخاطب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر اللہ کے رسول کے اس آیت میں علماء نے اس کی تشریح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو آسان کر دیا۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ان کے سامنے کہا کہ سورہ خفیفہ ہے، انہوں نے فرمایا خفیفہ نہیں ہے، سورہ میسرہ ہے۔ قرآن مجید کو اللہ فی نفسی آسان نہیں، اللہ نے اس کو آسان کر دیا لوگوں کو پڑھنے کے لیے۔ تو قرآن مجید کیسے حفظ کریں، آج کا موضوع ہے، بڑا اہمیت کا حامل۔ میں نے وعدہ کیا تھا اس سے پہلے کہ بیان میں کہ قرآن مجید کے متعلق، حفظ کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو اہم باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کرنے والے کی یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، یہ شرط ہے کہ وہ اپنی نیت صاف ستھری کر لے۔ نیت صاف ستھری کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے میں قرآن مجید کو یاد کر رہا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسا نیت ہوگی ویسا عمل کا اجر ملے گا۔ اگر عمل آدمی کتنا بڑا کر لے، بڑا ڈیل ڈول کا بڑا عمل ہو جائے، لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ عمل اکارت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ لیکن ایک عمل جو اخلاص کے ساتھ ہے وہ عمل وزنی ہو جائے گا۔ جس عمل کے ساتھ اخلاص سے للہیت ہے، اللہ کی رضا شامل حال ہے، وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو اہم بات ہے، سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ اپنی نیت درست کر لیں کہ اللہ کے کلام کو میرے کو حفظ کرنا ہے۔ نام نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے لے کے لوگ مجھے حافظ کہیں، لوگ میرا ہاتھ چومیں، لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں، لوگ مجھے واہ واہ کریں، میرے جیب بھریں، میری جو ہے جے جے ہو جائے، میری جے کار ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، میرا نام ہو جائے، یہ اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگوں کا سب سے پہلے حساب ہوگا۔ ایک وہ شخص کا جو قرآن کا قاری ہوگا، اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ کے سامنے مقدمہ اس کو پیش کیا جائے گا، اس سے کہا میں نے تو قرآن مجید پڑھنے کا سلیقہ سکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو قاری ہے، تو حافظ ہے، تو عالم ہے، میں نے تجھے علم دیا، قرات کا علم دیا، قرآن کے معنی سمجھنے کا، تو الفاظ کو یاد کرنے کا تجھے توفیق دی، تو نے کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے قرآن مجید کو لوگوں کو پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تو لوگوں کو اس لیے پڑھایا لوگ تو حافظ کہیں، لوگ تیری تعریف کریں، تیری توصیف بیان کریں، تو جو ہے ریاکاری کے لیے کیا تھا، تیرا یہاں اس کا کوئی عمل نہیں ہے، اس کو دوزخ میں ڈھکل دیا جائے گا۔ ایک آدمی قرآن مجید کو یاد کیا، قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید کے معنی سمجھا، زندگی کھپا دی، 15-20 سال پڑھا، عالم بنا، اس کا تمام علم ضائع ہو جائے گا اس کی نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ایک مالدار کو پیش کیا جائے گا، بڑا سخی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور مالدار سے کہا گیا تو میں نے تجھے مال سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے مخاطب ہو کر میں نے تجھے مال سے نوازا تھا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہے گا میں نے تیرا مال دیا تو میں نے سخاوت کی، میں نے غریبوں کی مدد کی، میں نے ایسا کیا ویسا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تو نے لوگوں کے نام کے لیے، نمود کے لیے، تو لوگ سخی کہیں، مالدار کہیں، غنی کہیں، تیری تعریف بیان کریں، تو اس مقصد سے کیا، یہاں کچھ ملنے والا نہیں، اس کو دوزخ میں ڈھکل دو، دوزخ میں اس کو سر کے بل ڈھکل دیا جائے گا، فرشتے ڈھکل دیں گے۔ تیسرا شخص لایا جائے گا جو شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو شہید ہے، تو نے اپنی جان دے دی ہے،
دنیا میں تجھے اللہ نے میں جان دیا تھا تجھے، میں نے زندگی دی تھی، تو نے راستے شہید ہوا اللہ کے راستے میں، حقیقت میں تو شہید ہوا، تو کہیں ہوا اللہ کے راستے میں حقیقت میں نہیں شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، تو لوگ اس لیے شہید ہوا کہ لوگ تجھے شہید کریں، تیرے گھر والوں کی عزت کریں، تیری تکریم کریں، تیری تعریف توصیف و مرنے کے بعد یہ مقصد تو شہید ہوا یا کچھ اجر ملنے والا نہیں ہے، دوزخ میں سو ڈھکیل دیے جائیں۔ ایک شہید جان دے رہا ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے، دوزخ میں جا رہا ہے۔ ایک سخی بڑا مالدار ہے، مال دے رہا ہے لیکن وہ دوزخ میں جا رہا ہے۔ ایک عالم یا قاری، ایک حافظ قرآن علم، اسے پوری زندگی لگا دیا لیکن وہ بھی چلے جا رہا ہے دوزخ کے اندر۔ تو فرمایا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے حافظ قرآن کے لیے ضروری ہے قرآن مجید کو یاد کرنے سے پہلے نیت درست کر لیں، اور قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے اس کا وقت جو مقرر کیا گیا، فرمایا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے، وہ وقت جو ہے فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے، وہ وقت بڑے اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید کی حفظ کرنے کے سب سے موضوع مناسب وقت یہی ہے کہ فجر کی نماز سے کیسا گہرا تعلق ہے قرآن مجید کو یاد کرنے کا۔ فجر کا جو وقت ہے وہ جنت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ کے رسول کے ارشاد، جو شخص چاہتا ہے فجر کی نماز کا اہتمام کرے، کیا چاہتا ہے؟ جنت چاہتا ہے۔ جنت میں جو وقت ہوگا، ہر وقت رہے گا جنت کے اندر، وہ فجر کا وقت ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھے گا اس کو جنت مل جائے گی، جنت کی طلب ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ زندگی بھر ایسے وقت میں رہی عبدالآباد زندگی جو راحت ہی راحت آخرت میں، تو فجر کی نماز کے اہتمام۔ اس لیے فرمایا علماء نے، سحر کا جو وقت ہے، سحر کے بعد کا جو وقت ہے، فجر کے بعد کا جو وقت قرآن مجید کے لیے یاد کرنے کے لیے بہت مناسب ہے۔ پھر جہاں آپ یاد کر رہے ہیں قرآن مجید کو، اپنے ذہن کو، طالب علم کو، اللہ کے رسول نے، علماء نے لکھا کہ 5 سال کی جو عمر ہے قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے بہت مناسب، اس کے بعد بھی حفظ کر سکتے ہیں لیکن سب سے اچھی عمر 5 سال کی ہے۔ 5 سال کی عمر سے حفظ کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اور قرآن مجید کو پڑھنے میں دوسری جو اہم بات ہے، سب سے اہم، قرآن مجید کی صحت کے ساتھ پڑھنا پہلے سیکھ لے۔ ناظرہ، اس کا تلفظ کی بڑی اہمیت قرآن مجید کی۔ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، بہت بڑی زبان ہے۔ 500 الفاظ گھوڑے کے اوپر اس کے اندر ہے عربی کے اندر، اور آنکھ کے لیے کئی 100 الفاظ ہے۔ ایسی وسیع زبان ہے، تو اس کا جو لہجہ، اس کا جو انداز، اس کی جو تجوید کہتے ہیں ہم، تلفظ کی بڑی اہمیت ہے قرآن مجید کی۔ اگر ایک آدمی قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے تو ث کا مخرج الگ ہے، مخرج ایک بھی ہے، اور لیکن صفت الگ ہے۔ سواد ہے، اس کا مخرج زبان کے نوک نیچے کے دانتوں کی جب کنارے سے لگنے سے جو ساتھ نکلتا ہے سواد، وہاں سے سین بھی نکلتا ہے۔ سین کا مخرج بھی وہی ایک ہی جگہ سے، مخرج کا مطلب ایک ہی جگہ سے نکلنے والا حرف، مخرج کا مطلب حرف کے نکلنے کی جگہ، تو سین بھی وہیں سے نکل رہا ہے، سواد بھی وہاں سے نکل رہا ہے، لیکن دونوں کے تلفظ میں فرق ہے، دونوں کی صفات الگ ہے۔ سین پڑھتے تو اس کی باریک آواز ہوتی ہے، سواد پڑھتے تو مطبخہ میں سے موٹی آواز نکلتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اذا جاء نصر اللہ، نون صاد را، نصر اللہ، جب اللہ کی مدد ہے، نصر ان کے معنی مدد کے، نصرت اسی سے مدد کے۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد ہے، سواد کو سواد سے پڑھ رہے ہیں، سواد کا تلفظ کا ہے نصر، سواد، سو، اس کے بجائے اگر کوئی سین سے پڑھ رہا ہے، اس کو سین کا مخرج سا ہے، سا، باریک آواز نکل، سیٹی کی جیسی آواز آتی ہے، اس کی تلفظ کی صفت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ پڑھا کوئی، نصر اللہ، اس کے معنی ہوں گے جب گید آئی، اللہ کی گید آئی۔ نصر کے معنی نون سین را کے، گید کے، نون سواد را کے معنی مدد کے، سواد کے تلفظ سے مدد کے معنی، سین کے تلفظ سے گید کے معنی۔ یہ باریکی قرآن مجید کے پڑھنے کے اندر ضروری ہے حافظ قرآن کے لیے۔ تو پہلے حفظ کرنے سے پہلے ناظرہ قرآن صحیح کر لیں، تلفظ صحیح کر لیں۔ اسی طریقے سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون، سواد ہے، سواد، بے شک اللہ اس کے فرشتے اللہ کے رسول پر درود شریف بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ یصلون کے معنی ہے، سواد سے پڑھنے کے معنی، یصلون درود پڑھنے کے، صلات کے معنی درود کے بھی، صلات کے معنی نماز کے بھی، سواد سے۔ اگر اس کو سین سے پڑھے تو تلوار کھینچنے کے معنی آتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، سین سے پڑھے سواد کو تو اس کے معنی بے شک اللہ اس کے فرشتے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول تلوار کھینچتے ہیں۔ یہ معنی میں زمین و آسمان فرق ہے، سواد میں اور سین میں، یہ بڑی باریکی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ سواد میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، سواد کے سین کے اندر زمین آسمان فرق معنی کے اندر۔ اس لیے بتلا دیا گیا کہ تجوید سے پہلے ناظرہ قرآن پڑھیں صحیح تلفظ کے ساتھ، اس کی ادائیگی صحیح ہو۔ اور تیسری جو اہم بات ہے، شرط ہے حفظ کرنے والے کے لیے، حافظ بننے والے کے لیے، قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ بھی ایک ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے۔ جس کے دل میں گناہ ہے
गुनाह का आदी है आदमी, आसी है, और उसके बाद वो गुनाह का अल्लाह का नाफरमान है, उसके दिल में कुरान मजीद नहीं आ सकता। कुरान नूर है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम कैसे आ सकता है नापाक दिल के अंदर। अब्दुल मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मशहूर है, आपने बयान फरमाया कि कोई शख्स इल्म हासिल कर रहा है, कुरान मजीद याद कर रहा है, लेकिन भूल रहा है, तो समझना चाहिए उसके गुनाह में गुनाह उसके जो है बतरतीब वो गुनाह करते जा रहा है, गुनाह का इस पर इसरार है, इसलिए वो कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते भूल रहा है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मशहूर है, उलमा के ज़बान ज़द है अहले इल्म के, कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे वकील, कि उनके पास इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तशरीफ़ लेकर फरमाया कि मेरा जो है हाफिज़ा कमज़ोर हो गया। आपके उस्ताद ने फरमाया हाफिज़ा कमज़ोर होने का उसका इलाज ये है कि गुनाहों को छोड़ दो, तरकुहु माला यानी ला यानी बातों को बेफुज़ूल बकवास में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। फ़इन्नल इल्म, उनके आखिरी जो अल्फाज है मैं अदा कर रहा हूँ, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद ने फरमाया फ़इन्नल इल्म नूरुन ला युअती लिआसी, बेशक अल्लाह का जो इल्म है वो अल्लाह का जो इल्म है नूर है, रोशनी है, एक रोशनी चिराग की तरह है, वो इल्म रोशनी है देता है, तो ला युअती लिआसी, गुनहगार के दिल में उतरता नहीं आता, अल्लाह ताला उसको इल्म नहीं देता। हज़रत गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया आदमी अगर 100 साल पढ़ ले किताबें और 1000 किताबें जमा कर ले, 1000 किताबें लिख ले, इसके बावजूद भी अल्लाह की रहमत उस पर मुझे नहीं हो जब तक वो अमल नहीं करता। तो हाफ़िज़ कुरान को अपने अमल पर भी तवज्जो देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है, झूठ से, ग़ीबत से, शरारतों से, बुरी बातों से, फहश से, और जो है गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानी से, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी से बचे, तो कुरान मजीद खुद याद होता है। ये तो याद भी हो जाता है, बस फिर आदमी उसके अमल की वजह से, उसकी बेतवज्जी से कुरान उसको भूल जाता है आदमी। इसीलिए फरमाया गया कि जो आदमी कुरान मजीद याद कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि उसके दिल को पाक साफ़ रखें। जिस दिल में कुरान मजीद अल्लाह का कलाम उसमें आ रहा है तो उसका दिल पाक साफ़ रहे, वो दिल के अंदर अल्लाह का कुरान उतर रहा है, पैवस्त हो रहा है। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान मजीद बचपन तो बच्चों को पढ़ाओ, कम उम्र के अंदर उनके खल्त गोश्त में खल्त मत हो जाता, कुरान मजीद खून के अंदर खल्त मत हो जाती सब के अंदर, इसीलिए हुक्म दिया गया बच्चा पैदा होते ही सीधे कान में अज़ा, बाएं कान में इक़ामत कही जाती। क्या बच्चे को मालूम है अज़ा क्या है, इक़ामत क्या है, उसको मालूम है क्या? बच्चे को तो बच्चा अभी तो ज़मीन दुनिया में आया है बाहर से, माँ के पेट से, लेकिन उसको बताया गया कि पहला कोरा वरक़ है, उसका दिमाग साफ़ सुथरा है, तो सबसे पहले अल्लाह उसके रसूल का तारुफ कराया जाए, उसके दिमाग में बैठ जाए बिठा दिया जाए अल्लाह उसके रसूल का नाम। इसी तरीके से फरमाया गया बचपन में तो कुरान मजीद बच्चों को पढ़ाओ। हिफ्ज़ के बारे में यही हुक्म है, जो बचपन में बच्चे हिफ्ज़ करते हैं वो जिस तरीके से उनका नक्श कल हजर है, बचपन में जब पढ़ता है आदमी तो कहावत अरबी के अंदर जैसे पत्थर पर कील मारते हैं आदमी, पत्थर पर कोई चीज़ कंधा करते हैं आदमी मिटती नहीं, ऐसे तरीके से बचपन की जो तालीम है दिमाग पर दिल पर पैवस्त हो जाती है। और वो ज़्यादा उम्र में आदमी पढ़ता है तो नक्श कल बहर है, तो पानी की पर कील मारते हैं तो कैसा हो जाता है, एक बार ख़त्म होता है, ऐसा ही होता है ज़्यादा उम्र के बाद पढ़ने के बाद। लेकिन इसके बाद में अल्लाह के ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, हम देखते हैं कुरान मजीद काफ़ी उम्र में हमारे उस्ताद से मौलाना सैयद खुर्शीद अली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मौलवी कामिल आलिम, बच्चे की शादी उदी होने के बाद अपनी कई उम्र के बाद तकरीबन 50 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था। ऐसे कई वाक़यात आपको मिलेंगे कुरान मजीद हिफ्ज़ के। और एक बात हम ज़हन में रखना चाहिए, जितने भी उलमा गुज़रे हैं अहले इल्म, जितने भी आइम्मा पूरे के पूरे हाफिज़ कुरान थे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, देखिए उनकी हालत पढ़े, आप सीरत पढ़े, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द हैं इमाम अबू यूसुफ, इमाम ज़ुफ़र, इमाम याक़ूब, जो कुछ थे सब कुरान मजीद के हाफिज़ कुरान भी थे। बचपन में कुरान मजीद को उन्होंने याद किया। क्यों? कुरान मजीद याद करने से दिमाग तेज़ हो जाता है, चार्जिंग जैसा दिमाग को चार्जिंग हो जाती है। उसके बाद वो इल्म जो हासिल करते हैं उनको कुरान मजीद के पढ़ने में आयतें ढूंढने में 500 आयत कुरान मजीद के अहकामात से मुताल्लिक़ है, नमाज के, रोज़े के, ज़कात के, तो अहकामात को पढ़ने में ढूंढने में आयत कहाँ है सहूलत। इसीलिए एक तरीक़ा था, जितने भी तकरीबन अल्लाह वाले देखेंगे कुरान मजीद के हाफिज़ कुरान, शेख अब्दुल गनी का वाक़या मशहूर है, और बचपन में सबसे पहले कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था। तो कुरान के हवाले से ये बात ज़हन रखना चाहिए। और सुबह का जो वक्त है बड़ा कीमती वक्त, फिर पढ़ते वक्त आदमी का दिल जो है उपताहट में नहीं होना चाहिए। अगर आदमी पढ़ने का दिल नहीं है तो नहीं पढ़ना चाहिए उसको। फिर डॉक्टरों ने, माहिर ने लिखा कि 40 मिनट, हर 40 मिनट के बाद हिफ्ज़ करने वाले को चाहिए वक्फ़ा दिया जाए, हर 40 मिनट के बाद। आमतौर पर घंटे होते हैं मदारिस के अंदर, वक्फ़ा है वो। इस तरह से आप 40 मिनट पढ़ने का तो उठ जाए, वज़ू करें, फिर फ्रेश होकर फिर पढ़ें। तफक्कुरात है ज़हन के अंदर, तख़य्युलात है, इंतशारी ज़हन में कैफियत है, तो कुरान मजीद याद पढ़ना नहीं चाहिए। फिर कुरान मजीद को पूरी एकसुई के साथ
बुलंद आवाज़ से पढ़ने का हुक्म है। जब आप बुलंद आवाज़ से हस्सिनुल कुरान भी अस्वातिकुम, अच्छी आवाज़ से कुरान, ज़य्यिनुल कुरान भी अस्वातिकुम, कुरान को अच्छी आवाज़ से ज़ीनत दो। अल्लाह के रसूल मन क्या है, इसमें है कि अल्लाह के रसूल जो शख्स कुरान में तो अच्छी आवाज़ नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है। तो आवाज़ को बनाए, उसका बड़ा असर होता है आवाज़ का। और जब ज़ोर से पढ़ने का हुक्म हिफ्ज़ करते खुद इत्मीनान से एक एक आयत को बार बार दोहराते हुए 10 या मरतबा 11 मरतबा एक आयत को पढ़ें, या एक एक आयत पढ़ने मुश्किल हो रही तो 2-2 4-4 लफ्ज़ पढ़ें, 2-2 4-4 लफ्ज़ याद करते हैं, बार बार रिपीट करते जाएँ। कितने आयतें आपको याद करना है? तकरीबन उलमा ने लिखा कि 5 आयतें हिफ्ज़ की रोज़ाना याद करने में सुन्नत है। किताबों में लिखा उलमा ने 5 आयतें रोज़ाना याद करना सुन्नत का मतलब है कि मुस्तहब दर्जे की सुन्नत है। अगर आप अदा करते हैं, पढ़ते हैं तो बेहतर है, ज़्यादा ही पढ़ सकते हैं, 50 आयतें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम रोज़ाना 5 आयतों का विर्द रखना चाहिए कुरान मजीद को पढ़ने में। कुरान मजीद के पढ़ने में 5 आयतें कम से कम उसको पढ़ना चाहिए। तो कई से अल्लाह वालों के वाक़ियात, अल्लाह के रसूल के पास क्या एहतराम था, कुरान मजीद क्या कदर थी। अगर कोई सहाबी हाफ़िज़ कुरान होते हैं, उनको कोई शादी का नहीं करता, कोई पैगाम नहीं आता, तो अल्लाह के रसूल तुम शादी क्यों नहीं करते? फरमाते या रसूल अल्लाह मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं होता, आप कुरान मजीद कितने पारे याद है तुमको? 5 पारे याद है, ठीक है। अल्लाह के रसूल सिफारिश करते हैं, देखो इनको 5 पारे कुरान मजीद याद है, इनको तुम बच्ची दे दो। तो कुरान मजीद 5 पारे याद करना भी बड़ी कदर की बात थी अल्लाह के रसूल के दौर में। आज वो कदर ख़त्म हुई हाफ़िज़ कुरान की। हाफ़िज़ कुरान ने भी उसको अपनी कदर ख़त्म कर दिया है। उनको खुद नहीं मालूम अपना मुकाम क्या है। और एक हाफ़िज़ होना की छाप होना चाहिए कुरान मजीद का, उस पर असर होना चाहिए। मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है, ख़ानदान के अंदर, अज़ीज़ अक़ारिब के अंदर, दोस्त अहबाब के अंदर, पड़ोसियों के अंदर, दोस्त घर वालों के अंदर होना चाहिए। कुरान मजीद के हाफ़िज़ हैं, इनकी ज़िंदगी एक हमारे लिए नमूना होना चाहिए। तो इसीलिए फरमाया गया कि जो हाफ़िज़ कुरान बाअमल है और वो क़यामत के दिन बाअमल हाफ़िज़ कुरान मर जाने के बाद क़यामत के दिन ऐसे 5 लोगों को जिस पर दोज़ख वाजिब करार दी गई थी, दोज़ख में जाने का हतमन फ़ैसला हुआ था अल्लाह की तरफ से, ऐसे 5 लोगों की शफ़ाअत फरमाएगा हाफ़िज़ कुरान। उसका मुक़ाम समझिए आप, क्या उसका मुक़ाम है। हाफ़िज़ कुरान नफ्सी के आलम में तमाम बड़े बड़े लोग भी परेशान होंगे, अम्बिया अलैहिस्सलाम भी परेशान होंगे। ऐसी हालत में अल्लाह ताला इजाज़त देगा हाफ़िज़ कुरान को कि वो 5 लोगों को जो है शफ़ाअत करें कुरान मजीद की बरकत की वजह से। तो फरमाया उसके लिए शर्त लगाई, वो हाफ़िज़ कुरान जो आमिल हो, आमिल बाअमल हो, अमल करने वाला भी हो। तो हाफ़िज़ कुरान को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को पहले संवारें और वज़ू करें, और वज़ू के अहतमाम के साथ ऊँची जगह पर बैठे, पढ़ने के वक्त एक सुई के जहाँ आवाज़ वगैरह नहीं आती, एक सुई के साथ पढ़ें और ध्यान लगा कर पढ़ें। आजकल मोबाइल का दौर है, लोग बच्चे मोबाइलों में बहुत सारे देख रहे हैं, लेकिन उससे आपको कई नुकसान हैं। आँख का नुकसान भी है, दिमाग का नुकसान। मोबाइल में आप याद करते हैं, पढ़ते हैं, वे इमरजेंसी तौर पे आप कुछ देख रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन कुरान मजीद याद करना, उसको पढ़ना, उसको देखना, मोबाइल का बहुत बड़ा नुकसान है। डॉक्टर ने कहा डिप्रेशन की किस्म बीमारी आ जाती है दिमागी मोबाइल को देखने से बार बार। अलगरज़ आप कुरान मजीद याद करें, सबसे पहले जो कुरान आप ख़रीद रहे हैं बड़े साइज़ के कुरान ख़रीदना चाहिए, साफ़। एक ज़माना ऐसा था हमारे दौर में, हमारे आका बड़े बड़े घरों के वालिदैन क्या करते, छोटे कुरान दिलाते थे बच्चों। उससे क्या नुकसान क्या होता, छोटे कुरान में पढ़ने से कुरान मजीद के जो हरूफ होते हैं बारीक होते हैं, तो पढ़ने में गलतियाँ रह जाती। और तबाद की ज़बान उतनी नहीं थी हमारे बचपन, लेकिन आज तबाद माहिर ज़बरदस्त तबाद आ गई किताबों के अंदर। कुरान मजीद की अच्छी साफ़ प्रिंटिंग हो रही है, आप साइट पर बेहतरीन नुस्खे मिल रहे हैं। तो आप अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी कुरान मजीद को पढ़ें, इस हद तक कि आप अच्छी तरह से उसको उठा सकें, जुज़ान में रख सकें और उसको पढ़ सकें। एक पेंसिल साथ रखें और पेंसिल से निशानदेही करें। एक आयत में आपको गलतियाँ जा रहे हैं बार बार, आमुख्ते में ये सबक के अंदर बार बार गलती जा रही है, आप याद नहीं रहा तो नीचे से उसको अंडरलाइन कर लिखिर मारें, फिर उसको रबर से मेड़ दें, क्योंकि उलमा ने लिखा कुरान मजीद के अंदर लिखना जायज़ नहीं, हराम है। बहुत सारे हम बच्चों को देते हैं हिफ्ज़ के कि पेनों से लाल पेन से इधर लिख दिए, हरे पेन से इधर लिख दिया, उसा उधर टिक मारते रहे, पेन मारते नहीं, ये मुनासिब नहीं है। पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए, पेंसिल से लिखना चाहिए, पेंसिल के बाद में रबर में साफ़ कर देना चाहिए। इससे कुरान मजीद के अंदर लिखना जायज़ नहीं, हराम है इस्लाम के अंदर। क्यों ऐसा लिखते हैं तो कोई कुरान मजीद की आयत के बारे में कुछ भी लिख देगा, यह आयत सही नहीं, आयत ऐसे आयत तो ताखिल होना। फिर दूसरे बड़ा एक मसला हम एक चैलेंज हाफिज़ों होता है, वो मुतशाबिहात की आयत का होता है। आयत एक जैसी आयत होती हैं, जैसा कुरान मजीद के अंदर वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़ वयक़्तुलून अंबिया बिग़ैरि हक़ वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, बिग़ैरिल हक़ है, बिग़ैरिल हक़ है, वयक़्तुलून अंबिया बिग़ैरि हक़ भी आया। 3 जगह इस तरीके से आया, इस तरीके से। उसके बाद कुरान मजीद के अंदर है फ़ी दियारिहिम जासिमीन, फ़ी दारिहिम जासिमीन, ऐसे उसको मुतशाबिहात की आयतें बोलती है। बड़ा इश्काल होता है, बड़ी पढ़ने में बड़ी जो है तकलीफ़ होती है हाफिज़ कुरान को, लेकिन इसका बेहतर तरीक़ा है इसको याद करें। एक आयत इसी तरीके दूसरी जगह कहाँ आई, तीसरी जगह कहाँ आई, चौथी जगह कहाँ आई,
चौथी जगह आई, पांचवी जगह आप याद कर लिए एक मरतबा तो आपको परेशानी हर जहन में बढ़ जाए। अगर आप उसे याद नहीं करें, याद कर लिए छोड़ दिए, वहाँ याद कर लिए तो बहुत सारे हुफ़्ज़ कुरान देखते हैं हम तरावी के अंदर भी गोल फिरते हैं इधर मुतशाबिहत के अंदर। तो कुरान का मामला है तो कोई भी कुरान के ऊपर गलती नहीं करता, दावा नहीं कर सकता, लेकिन मुतशाबिहात पर आप उसको अबूर रखें। अच्छा, और आपको किताबें मिल रही हैं बाजार के अंदर, मुतशाबिहात की किताबें छप चुकी हैं। एक कुरान मजीद के अंदर एक अंदाज़ की जो है इसी अंदाज़ की किताब आयतें कहाँ आई, 5 जगह आई, 2 जगह आई, 3 जगह आई, अलग प्रिंट निकल किताबें बाजार में मिल रही मुतशाबिहात, आयतें मुतशाबिहात के नाम से किताबें, वो पढ़ें। और फिर कुरान मजीद को जो है पूरी क्या कहते हैं तवज्जो के साथ हिफ्ज़ करें। और ऐसी खुशी आपको होना चाहिए, दुनिया की कोई खुशी उसके सामने है इस कुरान मजीद की हिफ्ज़ करने में। ये ज़हन में आप बैठा लें अपने आप को, मैं अल्लाह का कलाम हिफ्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह का तबर्रुक, अल्लाह के सबसे बड़ा तबर्रुक मेरे दिल व दिमाग में आ रहा है। एक तबर्रुक आता है, घर के अंदर जमजम है, खजूर है, तो तबर्रुक है। हज के अंदर हाजी लेकर आता है तो कहते एहतमाम से हम जम पीते हैं, जमजम का पानी और खजूर खाते हैं, तबर्रुक है, वहाँ से आया, यहाँ से आया, ये अल्लाह का तबर्रुक है। कुरान मजीद आपके सीने में आ रहा है तो उसको आप उसे कदर करें। अल्लाह ताला की बड़ी इसकी फजीलत होता है, इसीलिए फरमाया इन्ना क्या है, अकरिमुहुम हमलतल कुरान फमन अकरम फ़क़द अकरमल्लाह। जो कुरान मजीद की हाफिज़ कुरान की इज़्ज़त करा उसने अल्लाह की इज़्ज़त किया, जिसने उनके साथ गुस्ताखी की बेअदबी की उसने अल्लाह की बेइज्जती की है। आज मस्जिदों का क्या हाल है, आज मुआशरे का क्या हाल है, आज मस्जिदों के क्या इंतजाम के हाल है। बास का बेटों को छोड़कर आप देखें कि हाफिज़ कुरान मस्जिद का इमाम है, आलिम है, हाफिज़ है, कारी है, मुक़र्रिर है, मुफस्सिर है, फ़क़ीह है, सब कुछ है, लेकिन वो समझते हैं कि हमारे घर का नौकर है, उसकी कोई वक़ात नहीं है। क्यों कि नफ्स मोटा हो चुका है। कुरान मजीद का हिफ्ज़ का ताल्लुक़ है तो कुरान मजीद का उसके सीने में जो कलाम उसकी कदर करें आप। मस्जिद के जो इमाम है, इमाम के एतबार से उसके बाद अल्लाह ने उसको इल्म दिया, उसको मुक़द्दम बनाया नमाज़ पढ़ाने के लिए, तो उसका एहतराम दिल में होना चाहिए। नमाज के लिए खातिर मुक़द्दम नहीं है, वो हर मामले में मुक़द्दम होना चाहिए आपको, आपकी गुफ्तगू में, आपकी तर्ज़ अमल में, उसके साथ आपका मामला भी, उसकी गुफ्तगू भी उसी अंदाज़ में होना चाहिए। मेरा मस्जिद का इमाम है, मैं इसका मुक़्तदी हूँ, मैं इसका ताबे हूँ। इमाम जो है ज़ामिन है मेरी नमाज का, मेरी जन्नत में ले जाने का। तो हाफ़िज़ कुरान कितने मस्जिदों में है, क्या हमारी कदर हम कर रहे हैं? कोई हमारे पास उसकी वक़्त नहीं है। एक नौकर की अहमियत है, एक जो है झाड़ू देने वाली की अहमियत है। एक झाड़ू देने वाला, घर में झाड़ू देने वाली औरत होती है तो उसको जो है बड़ी इज़्ज़त से, एहतराम से बात करते हैं, उसको हटाते हैं, निकालते तो भी निकालते भी हैं तो बड़ी मुश्किल से, मोहब्बत से, प्यार से मिलाते हैं, निकालते हैं। फिर आई भी तो फिर तवाज़ु करते हैं, खातिर तवाज़ु करते उसको देते भी। लेकिन हाफ़िज़ कुरान अगर मस्जिद इमाम में चले गया तो फिर अगर आया तो लोग देखते रहते मिट मिटा, क्यों आया भाई, कहीं को आया, कहीं को आया, कहीं को आया, कहीं को आया, कहीं को है, सब कहीं को है। ये हमारा मिजाज ये बन गया है। हमारे को कुरान मजीद का एहतराम नहीं है, इज़्ज़त नहीं है दिल के अंदर। क्योंकि हाफ़िज़ कुरान भी अपनी इज़्ज़त नहीं रख ली उन्होंने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आदमी खुद अपनी इज़्ज़त पैदा करे, अपना मकाम खुद अपना बनाए, अपने आप को अपने खुद पहचाने, आदमी मैं क्या हूँ। तो खुद बहुत सारे इमाम बेचारों को खुद नहीं मालूम मकाम क्या है। कोई मालदार आदमी मिल जाए कमेटी का, उसके पीछे पीछे चले जाए, कुछ दे देता है, भीख दे देता है, हाफ़िज़ को भीख लेता है हाफ़िज़। कोई इमाम है उसके पीछे पीछे जाना, कमेटी के सदर के पीछे, मोहतमद के पीछे दुम हिलाना, उसके पीछे पीछे सेठ साहब कह रहा है, उनका मोटा हो रहा नफ्स, मैं भी जो है सेठ साहब हूँ, मुझ साहब आके मेरे पास बैठ रहे हैं। बेशरम बेहया लोग, बेहिस लोग हैं कमेटियों के बहुत सारे। अल्लाह ताला इनको तौफीक देने की तौफीक। तो हाफ़िज़ कुरान ये तो अलग मौजू है, इसके मुताल्लिक़ हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे मस्जिद की इमामत के और मुअज़्ज़िन के हवाले से। लेकिन हिफ्ज़ के मुताल्लिक़ मैं बातें अर्ज़ कर रहा था, आप पूरी तवज्जो को तो हिफ्ज़ करें। इंशाअल्लाह हम जो हिफ्ज़ का प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, अनक़रीब उसका ऐलान होने वाला है कि 2 घंटे की हमारी क्लास होगी। मगरिब के बाद से इशा के बाद हम बहुत मशवरा कर रहे हैं, जो लोग हिफ्ज़ करना चाहते हैं ये उन पर रब पैदा कर सकते हैं ऑनलाइन। और आप पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें हिफ्ज़ करने की। आप नीयत दुरुस्त कर लें तो कोई इसके सामने कोई नेमत, अल्लाह के कुरान मजीद की नेमत के मुकाबले कोई नेमत, दुनिया की नेमत नहीं। आदमी झूम जाएगा उसको बयान करते हो, बशर्ते कि उसके दिल में उसका एहतराम अज़मत कुरान मजीद की, जब उसकी अज़मत दिल में बैठ जाए, उसके फिर एक एक आयत अब पढ़ रहे हैं, एक आयत का पढ़ना, एक हर्फ पढ़ते हैं तो अल्लाह के रसूल 10 नेकियां मिलती हैं। अब सोचिए सवाब पर क्या ठिकाना हाफ़िज़ कुरान का। एक हर्फ पढ़ते हैं अल्लाह के रसूल पर, अलिफ लाम मीम, 3 आयतें हैं तो 3 आयतों को पढ़ा 30 नेकियां मिलती हैं। तो ये चंद बातें हिफ्ज़ के मुताल्लिक़ में अर्ज़ कर दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही हाफिज़ बनने की, जैसा अल्लाह ने तौफ़ीक़ दिया वैसा हिफ्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, कुरान मजीद की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारी खिदमत को कबूल फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि।